Sending your attendance, and within 2 minutes we will be starting. Shall we? Okay. So get your books. Books are with you, everyone. We are on page number 215, right? 215. And we have done all the 3 types of inequalities, right? Right? Yes, no? We have to start with recognizing dignity. We often use this word dignity. Yeah. We often use the word dignity in our daily life. Means getting respected and having the respect. You know, मेरी dignity is right. So, how we need to ensure dignity? How we can ensure respect to the differently abled people? Paragraph talks about it, right? हमने example में Shamlal, we discussed about Shamlal example, right? Just now. In the case of Shamlal, we saw that Shamlal was highly qualified, yet he was rejected due to his disability. उसकी disability की वजह से उसको एक तरह से reject करवा दिया गया, right? ये जो unfair treatment होता है, inequality हम करते हैं लोग, discrimination करते हैं, right? This is violation of dignity. Violation means हम उसकी respect खत्म कर रहे हैं, हम उसकी dignity उससे ले रहे हैं. Upholding the dignity, upholding the respect of the people, of the citizens, is central to democracy. We cannot take away the respect of the people. You as children, you are children, but you are the potential citizens. You will be the citizens of the country within few years, right? Official citizens हो जाओगे आप 18 years के बाद, हो जाओगे ना? अभी आप minor citizens हो. Till the age of 18, you are minor citizen, but still being a minor citizen, you have your own dignity and respect, right? आपको कोई bully नहीं कर सकता, आपको कोई harass नहीं कर सकता, है ना? Have this right. Okay. This is every individual, irrespective of minor है या वो citizen है, जैसा भी citizen है वो, he or she has the right to get respected and has in her own democracy, has in her own dignity. और उस dignity को protect करना democracy में सबसे important है, right? Nobody has the right to disgrace. हम एक दूसरे को disgrace नहीं कर सकते. Insensitive actions के साथ, insensitive actions, we will not compromise on insensitive actions. Okay. Now, how does Indian Constitution ensures equality in the country? Indian Constitution में ऐसे कौन से laws बनाए हैं? What are those special laws which ensure equality in the country? Okay. There are 6 of them. Very, very important. There are many other laws as well, but these 6 are very, very important. ये सबसे ज़्यादा important होते हैं. Okay, I'm just discussing them. Screen is visible to everyone? Yeah. There are many provisions. बहुत सारे laws हैं. Provisions means laws. There are many laws which ensure equality to every citizen. Provisions का मतलब laws होता है. हम political science में civics language में provisions होते हैं. Constitution में बहुत सारे ऐसे laws हैं जो equality to every citizen provide करता है. Now, before explaining the first point, I just want to ask you one thing. Bollywood movies देखते सारे? Everyone watches Bollywood movies? Or any movies, Indian movies, be it Hindi, Punjabi, Telugu, Tamil, movies देखते हो? कोर्ट रूम्स का सीन देखा है? कोर्ट रूम सीन्स, कोर्ट रूम पता है ना क्या होता है? कोर्ट का सीन्स देखे हैं? एंड स्पेसिफिकली आप 90s और 80s की मूवीज देखोगे, सनी देओल और इन सब की, अगर कोर्ट रूम सीन है तो यू हैव सीन जज के आगे एक स्टैचू होता है जिसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड होता है एंड हाथ में तराजू होता है. तो देखा है?
देखा होगा ये वाला स्टैचू, सबने देखा होगा मूवीज में, नहीं देखा तो कभी नोटिस करना, स्पेसिफिकली 90 और 80s की मूवी में बहुत होता था, बहुत यूज होता था। एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के आगे सब इक्वल है। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है। वो ब्लाइंड फोल्ड का मतलब है कि अगर चाहे प्रेसिडेंट आ जाए या स्मृति मैम आ जाए या कोई और सिटीजन आ जाए, लॉ विल नॉट चेंज, लॉ विल नॉट चेंज। एवरीवन हैज टू अबाइड बाय द लॉज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज हैं सबको वही फॉलो करने पड़ेंगे, बी इट मी, बी इट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, बी इट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, हम देख इफ यू हैव सीन संजू, इसने संजय दत्त की बायोग्राफी देखी है तो उनके ऊपर बीइंग द यू नो सच अ बिग एक्टर, उनके ऊपर इतने सीरियस केसेस चले थे, राइट। दिस शोज दैट एवरीवन आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑफ संजय दत्त हो या आप कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव, यू आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आपने आपने कुछ ऐसा किया है जो लॉ के अगेंस्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, विल हैव टू फेस द प्रोसीडिंग्स, आपको कोर्ट आना पड़ेगा। प्रबल आई विल कम टू लेटर ऑन बच्चे, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। आप एग्जांपल इसमें साइट नहीं करते, साइट में मत करना, बट जस्ट टू गिव यू द एग्जांपल एंड रेफरेंस कि आपको याद रहे कि ये पॉइंट किससे कनेक्ट होगा। ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, बी इट प्रेसिडेंट और ऑर्डिनरी सिटीजन, एवरीवन हैज टू अबाइड बाय द लॉज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है, प्रोहिबिट्स मीन्स यू कांट डू इट। प्रोहिबिशन का मतलब होता है यू कैन नॉट डू इट, कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, किस बेसिस पे, रिलीजन, कैन नॉट डिनाई एनीवन just because he belongs to some other religion. Race is basically color. अगर आपने देखा होगा और साउथ इंडियंस, साउथ इंडियंस a bit darker than the western tones, a bit darker than the north Indians. नोटिस किया है कभी? Have you noticed that? तो यूजुअली इस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कास्ट के बारे में भी ऑलरेडी डिस्कस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम देख चुके हैं। नाउ अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम वर्ड जेंडर क्यों नहीं हुआ, सेक्स क्यों यूज हुआ, मैं बताती हूँ। तो वी हैव अ चैप्टर जेंडर इनइक्वालिटी, जिसमें आई विल briefly explain you why it is better to use word sex rather than gender. देखो, मतलब sex is a biological, it's a natural difference, natural condition of being men or women, ये natural है। जेंडर जो होता है ये सोसाइटी ने बनाया बेटा, सोसाइटी ने डिसाइड किया गर्ल्स विल एक्ट इन दिस वे एंड बॉयज विल एक्ट इन दिस वे, दैट्स व्हाई वी यूज वर्ड सेक्स, बिकॉज जेंडर सोसाइटी को डिटेक्ट करता है एंड जेंडर इज अ डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड, डिस्क्रिमिनेटरी है। सेक्स इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल डिफरेंस। जब हम सेक्स बोलते हैं तो हम सिर्फ बोलते हैं मेल और फीमेल, हम ये नहीं कहते कि वो कैसे एक्ट करेंगे, कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, गर्ल्स को क्या करना है, बॉयज को क्या करना है, पिंक ब्लू ये सब किसने डिसाइड किया है, ये सब सोसाइटी ने डिसाइड किया, डिसाइड नहीं किया। जेंडर का जब कॉन्सेप्ट आया तब डिसाइड होने लगा, कलर्स डिसाइड कर दिए, गेम्स डिसाइड कर दिए, प्रोफेशन डिसाइड कर दिए, कुछ नहीं। दैट्स व्हाई द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सेक्स यूज हुआ है, जेंडर यूज हुआ है, बिकॉज दे वांट इक्वालिटी, और इक्वालिटी इस वर्ड से आएगी, इस वर्ड से डिस्क्रिमिनेशन आता है। आप अगर कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें सेक्स लिखा होना चाहिए, जेंडर नहीं। चलो एनी हाउ, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इसलिए पूरा चैप्टर है हमारे पास आगे सिविक्स में, तो हम करेंगे, बट फॉर नाउ यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। डिसेबिलिटी, रामलाल वाला केस, रामलाल वॉज हाईली क्वालिफाइड, फिर भी उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुई। प्लेस ऑफ बर्थ, आई बिलोंग टू हेयर,
मैं बिहार का या मैं उड़ीसा का बिलोंग करती हूँ, नहीं आपको जॉब नहीं देगी। आई आई एम एन इंडियन, should not matter who from where I belong. Why being discrimination is taking place just because I belong to a certain place, right? Further, it says all citizens have equal rights to use wells, tanks, bathing ghats. Haridwar सब गए हैं? Everyone has been to Haridwar, है ना? वहाँ घाट बना हुआ है ना, जाते हो बेथ करके आ जाते हो, है ना? वो बेथिंग घाट्स होते हैं, तो जो रिवर्स के पास बने होते हैं आपको बेथिंग करने के लिए, ठीक है? रोड्स, जितनी भी गवर्नमेंट ने पब्लिक यूज के लिए, all the infrastructure, all the facilities which has been developed by the government for the public use, आप उनको एक्सेस कर सकते हो, नो बडी कैन डिस्क्रिमिनेट। जब भी आप बेथिंग घाट पे जाते हो, क्या आप किसी रिवर में डिप लेने जा रहे हो, क्या आपको कोई रोक के पूछता है वेयर यू बिलोंग, व्हाट इज योर कास्ट, व्हाट इज योर रेस, या यू आर बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर एरिया? नो, लाइक रोड्स पे सब जाते हैं, रोड्स पे कोई पूछता है, और अगर कोई पूछे, और अगर किसी गवर्नमेंट, आप किसी पब्लिक यूज वाली इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो तो पब्लिक यूज के लिए, वहां अगर आपको कोई पूछता है और आपको रोकता है, तो यू कैन गो टू द कोर्ट कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस का यूज नहीं करने दिया गया मुझे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी पब्लिक यूज के लिए बना, हाँ प्राइवेट के लिए तो ऑब्वियसली बच्चे, आप किसी के घर में या किसी के स्विमिंग पूल में तो नहीं घुस सकते ना, प्राइवेटली तो आप किसी के घर नहीं घुस सकते, यू कैन नॉट गो ना, राइट? अगर किसी के घर में वेल बना हुआ है तो क्या आप जाके पानी निकाल सकते हो बिना परमिशन के? नहीं जा सकते ना ऑब्वियसली। तो ये पब्लिक के लिए होती है, जो भी पब्लिक यूज के लिए चीजें बनी है वहां पे आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। नाउ एवरी सिटीजन कैन एक्सेस शॉप्स, होटल्स, पार्क्स, प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट। सब शॉपिंग पे जाते हो, सब शॉपिंग में जाते हो, कोई पूछता है किस कास्ट के हो, क्या आपके लिए नहीं है ये मेरे, ये आप क्या आप नहीं खरीद सकते, आप यहाँ से बिलोंग करते हो? नहीं होता ना। होटल्स जाते हो, बाहर जाते हो, होटल्स में रहते हो या गेस्ट हाउस? पार्क्स तो प्री कोविड एरा में पार्क्स यूज्ड टू बी और डेली एक्टिविटी, है ना? प्री कोविड एरा में डेली एक्टिविटी होगी आपके पार्क्स जाना। तो प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट, एडवेंचर आइलैंड, फन एंड फूड विलेज, कितने भी आप कितने सारे ओएस्टर्स और पता नहीं कौन से जाते हो। पापा बाहर नहीं लेके जा रहे तो अम्यूजमेंट पार्क ही ले चलो, सबसे बढ़िया बहाना। नहीं, है ना? दो छुट्टी आगे, तीन छुट्टी तो बाहर नहीं जा सकते, अम्यूजमेंट पार्क ले चलो, फटाफट गाड़ी उठा दो, पहुंच जाते हो, है ना? तो रोकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन है? महीने में एक डिनर बाहर प्लीज, एक डिनर बाहर करना है ना? कोई नहीं रोक रहा। Now, the Constitution also forbids untouchability and its practice in any form. Untouchability की प्रैक्टिस डायरेक्टली या किसी भी फॉर्म में बच्चा, बहुत सारी फॉर्म्स में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो सकती है ना? कोई पास से निकल नहीं सकता, ये सब भी अनटचेबिलिटी का पार्ट है। किसी चीज को टच कर दिया लोअर कास्ट ने तो उनको पनिश कर दिया, ये भी अनटचेबिलिटी का पार्ट है। अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इट इज पनिशेबल, आपको पनिशमेंट मिल सकती है लॉ से अगर आप प्रैक्टिस करोगे अनटचेबिलिटी। टू प्रमोट इक्वल सर्विस प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है? इक्वल सर्विस को प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, जो भी गवर्नमेंट ओन्ड ऑफिसेस हैं उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, सबको सब अप्लाई कर सकते हैं, जो जो एलिजिबल है सब अप्लाई करो। ये नहीं कि फीमेल्स नहीं कर सकती, मेल्स कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन भी कर सकते हैं।
there is a provision that grant equal of opportunity in matters of public employment to any office under the government. जब भी आप गवर्नमेंट के अंडर काम करते हो तो आप पब्लिक एम्प्लॉयर हो, ठीक है, आप पब्लिकली एम्प्लॉयड। ये पॉइंट क्लियर है सबको, फर्स्ट वाला, एवरीवन? ओके, नाउ इंक्लूड पीपल विद डिसेबिलिटीज। बात आती है डिसेबिलिटी, जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है उनके लिए हमने क्या किया है, तो इंक्लूड पीपल विद डिसेबिलिटीज इन द मेन स्ट्रीम, तो मेन सोसाइटी में लाने के लिए गवर्नमेंट ने 1955 में एक लॉ बनाया। द गवर्नमेंट एनैक्टेड अ लॉ, एनैक्टेड मींस टेकिंग अ लॉ, ठीक है, एक लॉ बनाया 1955। दिस लॉ इंश्योर्ड इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्री एजुकेशन। इस लॉ से इक्वल ट्रीटमेंट और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई डिफरेंटली एबल्ड। स्पेसिफिकली जो लॉ था वो एम्फसाइज करता था दैट पब्लिक बिल्डिंग्स, जितनी पब्लिक बिल्डिंग्स है, शुड बी डिसेबल्ड फ्रेंडली। अ डिसेबल्ड पर्सन, say for example the person is on wheelchair, can he or she, the wheelchair can climb stairs? No, नहीं ना, व्हीलचेयर बच्चे क्लाइम करा पाएगी, क्लाइम कर पाएगी स्टेयर्स पे? नहीं कर पाएगी ना, राइट? सो देयर शुड बी रैम्प्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स। पब्लिक बिल्डिंग्स में आपके जितने भी पब्लिकली ओन्ड है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, इनफैक्ट प्राइवेट स्कूल्स एज वेल, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। अच्छा, एटीएम्स में अगर आप, कौन कौन एटीएम जाता है अपने फादर या मदर के साथ या भाई बहन के साथ? कई बार आपने ये पढ़ा होगा, डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड फ्रेंडली एटीएम, वो टच से चलता है, पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा ये, वो टच से चलता है एंड स्पीक्स, द एटीएम मशीन स्पीक्स, राइट? ये हम डिसेबल्ड फ्रेंडली कर रहे हैं अपने इक्विपमेंट्स को। रैम्प्स बनाना या टेक्नोलॉजी का यूज करना, एटीएम्स को हम एटीएम्स और बैंक्स को भी डिसेबल्ड फ्रेंडली कर रहे हैं। जितने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, अगर आप जाते हो तो वहाँ रैम्प बना होगा, आपने नोटिस किया होगा, रैम्प बना होता है। रेलवे स्टेशन अगर रिसेंटली आप गए हो 1-2 साल में, तो वो भी आपको देखा। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में पूरी असिस्टेंस मिलती है डिसेबल्ड पर्सन को। कभी देखा होगा और आपने, हेल्पर्स होते हैं, राइट? चाहे आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, हियरिंग इम्पेयर है, या अगर व्हील चेयर है तो वो ज्यादा कंसर्न होते हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है उनका एयरपोर्ट्स पे और रेलवे स्टेशन पे। मेट्रो में भी, मेट्रो में आपने देखा होगा, लिखा होता है व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। मेट्रो स्टेशन पे कभी देखना, नेक्स्ट टाइम जब भी मेट्रो में ट्रैवल करोगे, जस्ट नोटिस दिस। क्या पूछना उनसे, किसी भी एक हेल्पर से या सपोर्टिंग स्टाफ से पूछना कि डेली मेट्रो इज ऑल्सो पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग है ना डेली मेट्रो, कि प्राइवेटली चल रहा है ना? नोटिस करना, नेक्स्ट टाइम बैंक जाओ, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, जहाँ भी जाओ, देखना आसपास, नोटिस करना क्या क्या डिसेबल्ड फ्रेंडली है, कितनी एग्जीक्यूशन हो रही है। 1955 में लॉ बना है बच्चे, ऑलमोस्ट इट हैज बीन, कितने साल हो गए, 65+ हो गए। क्या हम डिसेबल्ड फ्रेंडली हो गए हैं? ठीक है, डीटीसी वगैरह में अब शुरू हुई है, तो कोई किसी ने थोड़े टाइम में डीटीसी से ट्रेवल किया हो, डीटीसी में भी शुरू हुई है ये सर्विस। ये बाहर की कंट्रीज में अगर आपने देखा हो, बाहर की कंट्रीज में पता है क्या होता है, कोई डिसेबल्ड होता है या व्हील चेयर पे, तो स्पेशल बस से रैंप खुलता है, स्टेयर्स नहीं होती, वो रैंप खुलते हैं, तो उनको चढ़ाया जाता है। तो अब यही सिस्टम डीटीसी में भी लेकर आ रहे हैं। द ड्राइवर विल प्रेस द बटन एंड द रैंप विल ओपन एंड यू कैन, दे कैन इजीली। आपने देखा भी होगा, अगर टीटीसी में ट्रैवल कर रहे होंगे या मेट्रो में, सीट्स रिजर्व होती है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। देखा, ये तो पक्का देखा होगा मेट्रो में एंड इन डीटीसी बसेस, राइट? दिस इज द लॉ बना था, उसकी एग्जीक्यूशन अभी तक चल रही है।
हम धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं नहीं, वी नीड टू respect them and we need to include people in the main society. This is all clear. All the 6 points are clear. Okay. It's better to remember all of the points. Okay. Any 5 will go. Any 5 को करने ही करने हैं. उसमें से ये वाला जरूर करना. This one and Constitution prohibits untouchability. Points सारे ही important है, but इससे तो direct question निकल सकता है, अलग से question निकल सकता है, and these 5 points can be used in a 5 marker. Okay. It can be a potential 5 mark question. आगे चलें. Let's move ahead. Now, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, सो इक्वालिटी दिया. नाउ हाउ वी आर गिविंग इक्वालिटी, हाउ गवर्नमेंट्स आर डूइंग इट विद वेलफेयर स्कीम्स. ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट लाती है ना, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स होती है. ऐसे कुछ लैंडमार्क वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च हुई है पिछले 2 decades में. लास्ट 20 years there have been landmark welfare schemes which are helped in ensuring equality. Okay. सबसे पहले मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं. मिड डे मील स्कीम तमिलनाडु, उसको अच्छा स्कीम क्या होती है वो मैं बताती हूँ. जस्ट एक फैक्ट याद रखना, तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस. तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट का ये इनोवेशन था. 2001 में इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट तमिलनाडु के गवर्नमेंट स्कूल. ये याद रखना पहले, उसके बाद में आगे देखते हैं. प्री कोविड एरा में चलते हैं. प्री कोविड एरा में चलते हैं. हम सब स्कूल आते थे, प्री कोविड एरा में. हम सब या तो लंच लेकर आते थे या हम मील सर्विस लेते थे, है ना. या हमारा मील प्लान था या हम लंच लेकर आते थे, है ना. आना कई बार क्लास में आती थी शौर्य भैया से बॉक्स लेते. शौर्य भैया मेरी क्लास में थे. मुझे लगता है और भी 2-4 के ब्रदर सिस्टर मेरी क्लास में थे, है ना. चलो एनीहाउ, तो बच्चा जितना आप लोग प्रिविलेज हो ना कि आपको लंच मिल रहा है साथ में, आराम से पढ़ के आ रहे हो. there are many families and many students who cannot afford to get lunch for their स्कूल में. वो लंच लेने की जाने की प्रोविजन ही नहीं. प्रोविजन मतलब उनके पास मीन्स ही नहीं, पैसे ही नहीं थे. ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो पुअर फैमिलीज होती है, उनको अगर 2 मील्स भी अ डे मिल जाए ना, उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है. हम दिन में कितने मील खा लेते हैं? कम से कम 5 मील खाते हैं, पता है आपको. ब्रेकफास्ट सब करते हो, उसके बाद तुम्हें मिड डे स्नैक चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें लंच चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हें टी टाइम स्नैक चाहिए, फिर तुम्हारा डिनर होगा, और उसके बाद तुम शायद डेजर्ट भी खाओगे, या तुम्हारा मूड आ जाएगा तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, राइट. बट कई फैमिलीज के लिए ना बेटा 2 meals a day is getting a very big thing. और जिस दिन 3 हो जाए ना उनके लिए पार्टी है. जिस दिन 3 meal day मिलता है, या फॉर देम इट्स अ पार्टी. तो पार्टी डे ये चीजें होते हैं. तो क्या ऐसी फैमिली सच में अफोर्ड कर सकती है कि वो एजुकेशन के साथ साथ अपने बच्चों को लंच दे? क्योंकि उनको खुद नहीं पता आज उन्हें 2 मील ऑफ द डे मिलेगा या नहीं मिलेगा. उनको यही नहीं पता है. डेली वेजेस पे काम करने वाले रोज की सैलरी, उनको रोज के पैसे मिलते हैं. जिस दिन वो काम पे नहीं जाएंगे उनको पैसे नहीं मिलेंगे. क्या होता था, ऐसी फैमिलीज के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने के लिए जाते थे, यूजुअली वो ब्रेक में, ड्यूरिंग द ब्रेक दे यूज्ड टू से, वो स्कूल में ये कह के चले जाते थे कि हम लंच करने जा रहे हैं, एंड दे यूज्ड टू नॉट कम बैक. वापस नहीं आते थे. ठीक है, स्कूल वापस नहीं आते थे, क्योंकि वो कहाँ चले जाते थे? अपने पेरेंट्स को हेल्प करने. तो वैसे ही भूख भूख लगी हुई है, ठीक है, शायद वहां जाके हेल्प करेंगे तो खाना जल्दी मिल जाएगा. तो पढ़ाई से ज्यादा क्या तुम भूखे पेट सच में पढ़ाई कर लोगे? और भूख लगी और तुम पढ़ लोगे?
नहीं पढ़ पाओगे ना। तो इनके साथ भी यही था। अगर आपने अटेंडेंस रजिस्टर कभी देखा हो मैम का, तो हम 2 बार प्रेजेंट लगाते हैं। अगर किसी ने देखा हो, हम 2 बार प्रेजेंट लगाते हैं। बेसिकली एक मतलब होता है बिफोर रिसेस, एक होता है आफ्टर रिसेस। अब हम तो तुम्हारी दोनों टाइम प्रेजेंट लगा देते हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में ना आफ्टर रिसेस भी अटेंडेंस होती है। वो देखते बच्चा सुबह आया है, दोपहर को तो आया ही नहीं, मतलब वो लंच का कह के गया तो वो वापस स्कूल ही नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए। ठीक है, ऐसे तो अटेंडेंस गिर रही है। और अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, एंड देन हाउ विल दे गेट देमसेल्फ एजुकेटेड। वो एजुकेटेड कैसे होंगे? एग्जाम्स में पास नहीं होंगे तो एजुकेटेड कैसे होंगे? स्कूल नहीं आएंगे, पास नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे। तो ये वाली फैमिलीज कैसे बाहर आएंगी पॉवर्टी से, अगर बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो। फिर सोचा गया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मिड डे मील्स। गवर्नमेंट स्कूल 2 शिफ्ट्स में काम करते हैं, सबको पता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है गर्ल्स के लिए, इवनिंग शिफ्ट होती है बॉयज के लिए। ठीक है, अब बॉयज का स्कूल तो होता है से 1 बजे से कह लो 6 बजे तक। ठीक है, तो इनका मिड डे होगा 3:30 में या 3 o'clock। गर्ल्स का होता है सुबह 8 से 1 बजे तक। इनका तो हो गया 11 बजे। ठीक है, इनके लिए लंच आ गया। तो मिड डे जो भी मिड डे स्नैक होगा, बेसिकली मिड डे का जो भी आपका मील होगा, उसको मिड डे मील स्कीम कहा गया। दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। स्कूल देगा, स्कूल स्कूल तक पहुंचेगा ये और बच्चों को खाना देगा। अब इससे इसका 2 चीजों पे इफेक्ट आया। इसके 2 रिजल्ट थे। पहला रिजल्ट ये हुआ, पेरेंट्स ने पेरेंट्स स्टार्टेड एनरोलिंग देयर स्टूडेंट्स, देयर चिल्ड्रन। उन्होंने एडमिशन करानी स्टार्ट कर दी बच्चों की। क्यों? दिस इज सिक्योरिंग कि उनको एक टाइम का खाना तो मिल रहा है ना। बच्चों को तो एक टाइम का खाना मिल जाएगा अगर स्कूल जाएंगे तो, है ना। उनकी एक टेंशन खत्म कि बच्चे को एक टाइम का अच्छा खाना मिल जाएगा। साथ में अगर बच्चे को, अगर आपकी एज में डेफिशिएंसी बहुत सारी हो जाती है बच्चे, ठीक है, और अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो गवर्नमेंट उसकी भी डोज दे देगी। ठीक है, तो एक तरह से पेरेंट्स ने क्या किया, जस्ट कि इस लालच में कि बच्चों को खाना मिल जाएगा एक टाइम का बहुत अच्छे से, तो दे स्टार्टेड एनरोलिंग देयर स्टूडेंट्स। एनरोलमेंट रेशो होती है बच्चे, जब एडमिशन ज्यादा होती है, जो हमारी एडमिशन रेट होता है उसको एनरोलमेंट रेशो होता है, तो वो बढ़ने लगा। ठीक है, सेकंड, इक्वालिटी आ गई बच्चों में, इक्वालिटी की सेंस आने लगी, टुगेदरनेस की। जब हम साथ खाना खाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, हमें ये याद नहीं होता ना कौन किसके कास्ट का है। हमें लगता है हमारे फ्रेंड, हम साथ मिलके खाना खा रहे हैं, तो लोअर कास्ट के बच्चे, अपर कास्ट के बच्चे सब साथ मिलके खाना खा रहे हैं। ठीक है, और जो बना रहा है, बच्चों को नहीं पता वो किस कास्ट का है। और क्या सच में कास्ट की वजह से खाने के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। कोई भी बनाए, रोटी तो रोटी रहेगी, राइस विल बी राइस। राइट, सो दिस रिजल्टेड इन द इंक्रीजिंग ऑफ एनरोलमेंट रेशियो। दूसरा, बच्चे खाने के बहाने घर भी भागते थे सेकेंड हाफ में। ठीक है, एनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ गई, इक्वालिटी भी प्रमोट हो गई बच्चों में भी, और बनाने वाले और खाने वाले में। पॉइंट समझ में आया मिड डे मील स्कीम का? सारी कहानी समझ में आई सबको? सॉरी, और रिमेनिंग 3 we will be discussing on Monday, and we will try to wind up the chapter. Okay, फटाफट जीके का होमवर्क लिख लो। होमवर्क लिख लो बच्चों फटाफट। जीके की बुक है? anybody is having जीके book with them right now? वेरी नाइस। चेतना या दर्शिका, हमने कितना कर लिया है बेटा? कौन से पेज तक वी हैव डन? वी हैव डन टिल 10? Ma'am, we haven't started yet. Okay, we haven't started GK yet. ठीक है, स्टार्ट नहीं किया अभी तक? ठीक है, पेज नंबर 5, पेज नंबर 9 and 10. 5, 9, 10 are the homework. Page number 5, 9 and 10 are homework, and I'll be discussing them in the next class. Okay, I'll be discussing them in the next class. You everyone, take care. I hope everyone has sent me the attendance. Bye, take care. Monday को मिलते हैं. See you.